Hello everyone. In the previous class of structural mechanics, we have studied to calculate the unknown support reaction for different problems. Okay. So that we have found out by using our equilibrium equations. Our generally three equilibrium equation we are using, that is sum of horizontal forces 0, sum of vertical forces 0 and a moment about z axis is 0. Okay. By using these three equation, we are calculating the unknowns, the unknown reactions. Okay. So that part over. Now we will move to the core part of this subject, that is shear force and bending moment, the critical part. Okay. So kindly request all students to go carefully and listen carefully to the video and practice more and more problems. Okay. So starting with our shear force. So first I will cover the theoretical part, then I will move to the problem. Okay. So shear force means what? Shear force is defined as at a section the summation of the transverse load either from left of the section or from right of the section. Okay. तो उसका मतलब क्या है? shear force एक सेक्शन के तुमको पूछा गया तो क्या बोलोगे? वो सेक्शन से इधर लेफ्ट साइड में सब ट्रांसवर्स लोड ऐड कर दो या फिर वो सेक्शन से राइट साइड सब ट्रांसवर्स लोड ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट आया वो हो गया तुम्हारा shear force. So the definition is shear force at a section is defined as the summation of the transverse load either from the left of the section or from the right of the section, that is shear force. Okay. Now the question is how to calculate this shear force. Okay. So just adding the transfer load, it will not give the result. You should take the sign convention also. That most important thing in this chapter is your sign convention. Okay, that you should know. So shear force definition over. Next, the sign convention definition. I will give the note. Don't worry. Then sign. Suppose you are taking a section XX here. Okay. So right side of the section, if the load is like this and left side of the section is load is like this, then it will be positive. Positive shear force. Okay. When it will negative, suppose this is the XX section, right side load will be like this upward and left side downward. So in that case it will be negative. Okay. So this will be clear while doing the problem. Okay. How we are applying the sign convention. Now just remember, if this is a section, right side of the section is the load is downward, then it is positive, or left of the section is upward, then also positive. Okay. Here also right of the section is upward, left of the section is downward. If this condition satisfies, then negative. Okay. Now just remember this, while doing the problem it will be clear. Okay. So this is about shear force. I will do the problem, don't worry. So now just mark the sign convention. Next I will tell the bending moment. These two things are much more important in your subject. Bending moment. Bending moment means what? It is the same thing. Bending moment at a section is defined as the summation of all the moments either from left of the section or from right of the section. The same thing. Just you have to add the moments either from left or either from right. Okay. So हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे. इसके केस में साइन कन्वेंशन क्या होगा? ये मोमेंट है तो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं आएगा, थोड़ा डायरेक्शन आएगा इसमें. तो वो क्या डायरेक्शन रहता है? सपोज ये तुम्हारा बीम है, सपोज यहाँ पे ऐसे एक्ट होता है
और यहाँ पे एसेक्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव. दिस मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सैगिंग मोमेंट. Okay, this is called sagging moment and is also positive. So just imagine if this is a beam, if we are applying a moment like this, is a moment, so it will bend like this. Yes or no? This is a shape of concave. Okay, so it can also called sagging moment or concave shape. Okay, what is negative case? Negative means it will be like this. The moment will apply like this. So what will the shape will be like this? Yes or no? If it is a beam, if you are applying like this, obviously it will bend like this. So it is called hogging moment. Otherwise it is convex. This shape is convex, na? It's convex. So just remember this. This is plus, this is minus. Just imagine this, mark this sign convention. While doing problem, I guarantee that it will be clear for everyone if you are looking carefully. Okay? This is a very critical chapter. If you are not able to understand the basics, then you will not solve problem. You cannot solve any problem. Okay? So I am going slowly. So go simultaneously with me. Okay? It will be clear. Okay? So just imagine the shape. Okay? This shape should be in your kept in mind. Okay? To make the problem easier. So sign convention and the definition part of shear force bending moment is over. Now we will move to problem. जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होगा. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ओके, तो लुक केयरफुली. ऑलवेज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ SFD and BMD. Shear force diagram, bending moment diagram. Every question, and one question is must for your semester exam. Okay, so look carefully, starting with simple and analytical problem. Suppose it is a roller support, it is hinge support, here point A, here point B. Suppose the length is L. Okay, point load is acting at W, here L by 2, L by 2. Okay, this much given. You have to calculate the shear force diagram and bending moment diagram. Okay, this much question will be given. Now listen carefully. You will start with, I already told, to finding out the unknown reaction. Okay, पहले तुम अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करोगे. ठीक है, अननोन रिएक्शन फाइंड आउट मैं किया था पिछले क्लास में. तो समेशन ऑफ पहले क्या करोगे, Fx इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं, बस HA है तो उसको 0 कर दो. यहाँ पे बस आएगा ना, और तो कुछ है नहीं. यहाँ पे R है, यहाँ पे RB. Okay, now the part will start. The summation of Fy equal to 0. वर्टिकल फोर्स, क्या क्या वर्टिकल फोर्स है, RA और RB एक डायरेक्शन में, W अपोजिट डायरेक्शन में. तो RA RB को पॉजिटिव ले लो. RA प्लस RB इक्वल टू डाउनवर्ड कितना है, W. तो ये हो गया एक इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या होगा बोला था मैं, मोमेंट अबाउट क्या A.0 करोगे. ओके, B पॉइंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो क्या क्या मोमेंट आएगा, ड्यू टू RB क्या आएगा, RB इंटू L. मोमेंट मतलब क्या, रिएक्शन इंटू डिस्टेंस, RB इंटू L, एंड दिस विल बी W इंटू L by 2. सो राइट डाउन
RB into L is anti-clockwise. I already solved previous class. RB into L means anti-clockwise. W into L means clockwise, so opposite sign. RB into L will be positive, but it will be negative. W into L by 2 equal to 0. So RB क्या आएगा? W by 2. ओके, तो ये इसको ये इक्वेशन में पुट कर दो. RA प्लस W by 2 इक्वल टू W. तो RA कितना आएगा? W by 2. It is W by 2. RB equal to W by 2. In every problem, you have to calculate the support reaction first. So this much work is over. This already solved in the previous class. Now we'll move to the critical section, that is shear force and bending moment. Okay. How will you proceed first about shear force diagram? So how will you proceed? Okay, starting with take a section. Okay, कोई भी जगह एक सेक्शन ले लो, वहाँ से स्टार्टिंग होगा. मैं ले लूँगा, इधर से स्टार्ट करता हूँ. मैं इधर सेक्शन ले लिया, सपोज x x. क्लियर? वहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, वहाँ पे एक डिस्टेंस ले लूँगा x. जहाँ एक सेक्शन लगे वहाँ का एक डिस्टेंस x ले लेना. ठीक है, मैं एक एक स्टेप बोलते जा रहा हूँ, फॉलो करो बस. सब प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय दिस सिंपल स्टेप्स. ओके, एक्स सेक्शन ले ली, फिर एक्स डिस्टेंस ले ली, फिर वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे shear फोर्स. तो मैं लिख रहा हूँ shear फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन. ओके, तो अभी आते हैं. shear फोर्स मतलब क्या? एक रिएक्शन ही है, एक लोड ही है ना. तो इससे हम लेंथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? मोमेंट होता तो लेंथ मल्टीप्लाई करते. तो यहाँ पे shear फोर्स एट एक्स एक्स मतलब क्या होगा? वही रिएक्शन उतना ही होगा, RB, दैट इज W by 2. ओके, बट हियर यू हैव टू सी दैट इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. लुक एट द साइन कन्वेंशन. यहाँ पे एक एक्स एक्स सेक्शन था, ठीक है. ये देखो लोडिंग कैसे है, अपवर्ड है. तो देख लेना नेगेटिव साइन है इसके लिए, ऐसे वाले के लिए नेगेटिव था. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इधर माइनस RB दैट इज माइनस W by 2. ओके, और देखो और कुछ रिएक्शन है इसके राइट साइड में? नहीं है. मैं क्या बोला था डेफिनेशन में shear फोर्स का? जहाँ भी सेक्शन लोगे इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, राइट ले लो या फिर लेफ्ट ले लो. हम राइट से शुरू करें क्योंकि कम लोड है इधर. राइट से बस RB है तो बस RB ले ली. पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, खत्म. ठीक है, अभी फाइंड आउट करेंगे पॉइंट के हिसाब से. ये A B अगर C हो गया तो हर एक पॉइंट में फाइंड आउट करो shear फोर्स. स्टार्टिंग करेंगे C में. C के लिए ये B करता हूँ, पहले B का उधर से शुरू करते हैं. B में कितना आएगा? ये x के टर्म में नहीं है ना. x टर्म में होता तो x 0 पुट करते B में, या x धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते L by 2 होता. shear फोर्स तो x से इंडिपेंडेंट है, तो बस वही माइनस W by 2 ही होगा, और क्या. ठीक है, shear फोर्स C में भी वही, डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, उतना ही वैल्यू आएगा. उसके बाद खत्म. ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, जहाँ तुमको चाहिए वहाँ एक सेक्शन ले लेना, बस बात खत्म. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? वहाँ पे सेक्शन ले ली, तो फिर वो सेक्शन में क्या करेंगे? इसको 1 1 ले लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा. 2 2 ले लूँगा, ये 1 ये 2. ठीक है, वो सेक्शन में सब सेम प्रोसेस, ये x ले लो. ठीक है, फिर ये सेक्शन में फाइंड आउट करो shear फोर्स. राइट नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस है, हम इधर से लेफ्ट ले लेंगे. लेफ्ट में क्या है? बस
W/2 है। साइन कन्वेंशन देख लेना। साइन कन्वेंशन क्या था? साइन कन्वेंशन तो यही था ना, ये सपोज सेक्शन हुआ XX, ये हो गया था पॉजिटिव या इसका ऑपोजिट हो गया था नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस। तो देखो ये सेक्शन है, ये देखो उसके लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स, तो प्लस, तो प्लस ले लो, प्लस RA दैट इज W/2। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएगा, A पॉइंट में वो इंडिपेंडेंट और B पॉइंट में भी इंडिपेंडेंट। तो अभी तुमको ड्रॉ करना है डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये W/2, ये W/2। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। अभी वैल्यू पुट करते जाना बस। ए पॉइंट में कितना है यहाँ शियर फोर्स? ए पॉइंट में देखो W/2 प्लस में है ना, ये सब तो ऊपर ले लो, प्लस में है तो ऊपर, ठीक है। फिर धीरे धीरे देख लेना, सी पॉइंट में कितना है? सी पॉइंट में -W/2 और इधर सॉरी सी पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट इज सी, सॉरी, सो इट इज आल्सो W/2, ए पॉइंट आल्सो W/2, सो इट इज कांस्टेंट। ये अगर सी हुआ, ये बी हुआ, तो यहाँ पे भी W/2 होगा, तो एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये हो गया W/2 पॉजिटिव। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सी पॉइंट में 2 वैल्यू है, यहाँ पे W/2, यहाँ पे -W/2, तो ये W/2 हो गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू कैसे लोगे? नीचे ले आओगे उसको, ठीक है। उसके बाद देखो बी पॉइंट में कितना है? बी पॉइंट में है -W/2, तो वही माइनस में ही चल रहा है ना, तो प्रोसीड कर दो। तो ये माइनस, ये हो गया W/2। तो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे वैल्यू W/2, यहाँ पे भी W/2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम, ओके। और इसका ट्रिक भी है बहुत सारा, मतलब तुम देख के ही ऐसे निकाल सकते हो। नो नीड टू सॉल्व दिस, दैट आई विल टेल लेटर, ओके। थोड़ा ट्रिक्स वगैरह है जिसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी पहले तुम कन्वेंशनल मेथड में सीखो, क्योंकि ट्रिक वगैरह सीख लिए तो तुम्हारा लेंदी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए इनिशियल स्टेज में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। पहले तुम कन्वेंशनल ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद में मैं बता दूंगा कैसे इजीली ड्रॉ हो जाएगा ट्रिक में, ठीक है। तो ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। नाउ विल मूव टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक प्रॉब्लम सीख लिए तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं साइन कन्वेंशन फिर से लिख लेता हूँ। ये ऐसा आया तो नेगेटिव, ठीक है। Okay, now I will solve. So starting with same, I will take the section XX1, वही पे वही सेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये X1 ये X2 वही पे वही सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला था डेफिनेशन में? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तुमको चाहिए जिस सेक्शन में, इधर लेफ्ट जाना है और राइट जाना है। जहाँ पे तुमको कम लोड दिख रहा है उधर चले जाना। तो राइट साइड में कम लोड दिख रहा है, बस यही है और तो कुछ है नहीं, तो राइट साइड जाएंगे हम, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ये एक्सेस निकालेंगे। मोमेंट मतलब क्या? जब रिएक्शन में अननोन रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे थे अबाउट 0, मोमेंट अबाउट 0, तो क्या करते हैं? रिएक्शन इनटू डिस्टेंस कर रहे थे। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या है? W/2 इंटू डिस्टेंस, वही कर देंगे। तो W/2 इंटू एक्स कर देंगे, वो तो वैल्यू हो गया। अब सोचेंगे साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन देखो, ये सेक्शन है, ये लोड है, तो मोमेंट कैसे एक्ट हो रहा है? इमेजिन दिस वन
विल बेंड लाइक दिस, यस और नो? देखो इधर देखो, ये से बेंड हो रहा है ना, ये बीम है तो एरो ऐसे आ रहा है ना, रिएक्शन इनटू डिस्टेंस ऐसे आ रहा है तो पॉजिटिव, तो W/2 इंटू x, that is positive. Clear? Now you can find out the value at B point and at C point. Clear? So B point में क्या होगा? B point में x का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये सेक्शन इधर चला गया, मतलब क्या? x का वैल्यू 0. So here x equal to 0, तो पुट करो W/2 इंटू 0, तो ये हो गया 0. तो बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट इज 0. नाउ बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट क्या करेंगे? C पॉइंट में तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? x का वैल्यू इंक्रीज होते होते इधर आ गया, क्या है वैल्यू? L/2. सो x का वैल्यू इधर हो जाएगा L/2. पुट करो L/2, W/2 इंटू L/2, तो इट इज WL/4. क्लियर? तो अभी ये हो गया, यहाँ तक हो गया. हम इधर से चलेंगे. अभी इधर से क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट x(2). ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन लिए और रिएक्शन ये है डिस्टेंस x से, तो मोमेंट कितना होगा? W/2 इंटू x. वो तो पता है सबको, रिएक्शन डिस्टेंस कर दोगे. अभी साइन कन्वेंशन कैसा होगा? देखो ये सेक्शन है, ये रिएक्शन और डिस्टेंस, तो ऐसे मोमेंट आएगा, है कि नहीं? ऐसे डायरेक्ट मोमेंट आएगा. यहाँ पे जैसे ऐसे आ रहा था, यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ऐसा आएगा तो पॉजिटिव, तो इट विल बी W/2 इंटू x. सेम थिंग. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट, that is x equal to 0, so it will be 0. Then bending moment at C point, that is x equal to L/2, so put कर दो तो वो आएगा WL/4. यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इक्वल आया C पॉइंट में, दोनों केस में WL/4, कोई दिक्कत नहीं. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. पहले लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ कर देना. उसके बाद ABC लिख दो. A पॉइंट में वैल्यू कितना है? A पॉइंट में वैल्यू 0 है. ओके, तो 0. और C पॉइंट में कितना है वैल्यू? WL/4, तो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, प्लस है ना, ऊपर जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो B पॉइंट में कितना है? B पॉइंट में 0 है, तो फिर से नीचे आ जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि पॉजिटिव है और इसका वैल्यू है WL/4. Remember this value. Okay, this value are important. Okay, you can ask the bending moment for a simply supported beam if loaded at the center, and the bending moment is WL/4. A short question, remember this. So like this the problem will be solved. After solving number of problems, the shear force bending moment concept will be clear. I am sure this is the first problem, so I think you may face problem. ये पहला प्रॉब्लम है, तुमको थोड़ा दिक्कत होगा इसको समझने में. जैसे ही सॉल्व करोगे 5-6 प्रॉब्लम, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास और सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, देन इट विल बी मोर क्लियर. थैंक यू.